myself Megha Kuwar, research scholar at HNB Garhwal University. On behalf of Indian Research Scholars Association, I welcome you all in the meeting, which is titled on the topic Scientific Writing for Academic Excellence, Major Challenges and Opportunities. We have with us Dr. Sanjay Kumar, Associate Professor, Psychology Department, University of Allahabad, and Dr. Pramesh Chetri, Assistant Professor, Department of Humanities and Social Sciences, Sikkim University. Without wasting any time, now I would like to request Shakshi Singh, the co-convener, to kindly come forward and see the further proceedings, give a short, brief introduction of our speakers, and kindly welcome them. Shakshi. Good evening, everyone. I, Sakshi Singh, welcome you all on behalf of Indian Research Scholars Association. Today we have two eminent academicians, Dr. Sanjay Kumar sir, Associate Professor, Psychology Department, University of Allahabad, and Dr. Pramesh Chetri sir, Associate Professor, Department of Humanities and Social Sciences from Sikkim University. Today they will enlighten us on the topic scientific writing for academic excellence, major challenges and opportunities. Now I welcome Vikas sir for welcoming speech. Over to you, Vikas sir. Thank you. Okay, thank you, Sakshi ji. You all can listen me well. Yes, Vikasji, we can. Okay. So first of all, I would like to welcome our both speaker, Dr. Sanjay Kumar sir and Dr. Pramesh sir, who have accepted our invitation very easily. And I would like to welcome convener of this lecture series, a dynamic convener of this lecture series, Megha Kumarji, co-convener of this lecture series, Sakshi Singh ji, and co-convener of this lecture series, Vijay Kumar ji, and Ganeshi Lal ji. So I'm welcome to all participants who have taken our valuable time and become part of this lecture series. Again, I'm welcome in this lecture series all academic person, research scholars, and all of you on behalf of this organization and on behalf of me. So thank you so much. अब मैं मेघा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो डॉक्टर संजय कुमार सर का इंट्रोडक्टरी स्पीच दें, जिससे हम सभी सर वैसे सबको ही सर से बहुत अच्छे से वाकिफ है। सर हम बहुत ही प्लीज्ड हैं, बहुत ही ग्रेटफुल हैं आपके कि आप इससे जुड़े और आज हम लोगों को आप बहुत ही अच्छी जानकारी देंगे। तो मैं मेघा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सर का इंट्रोडक्शन दें ताकि यहाँ पर सभी पार्टिसिपेंट को सर के बारे में जानकारी मिले। थैंक यू। सर का इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा है, तो मेघा जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बिल्कुल से ब्रीफ में इंट्रोडक्शन रखें, क्योंकि डॉक्टर संजय कुमार सर हैज नो नीड ऑफ एनी इंट्रोडक्शन। सो मेघा जी। बिल्कुल सर, समय भी हमारे पास कम है और संजय कुमार सर, डॉक्टर संजय कुमार सर एसोसिएट प्रोफेसर है साइकोलॉजी डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में। और जैसे सर ने कहा सर को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत है ही नहीं, तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी, सर प्लीज आप आए और हमें लेक्चर सीरीज को स्टार्ट कीजिए। सर हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। मेरी स्लाइड आप लोगों को दिख रही है, नहीं दिख रही?
I'm trying to share. Just give me some. पहले दिख रही थी, अभी नहीं दिख रही संजय। Okay. अभी दिख रही है। बस मैं शुरू ही कर रहा हूँ, मुझे बस 30 सेकंड और लगेंगे ठीक करने में इसको। और ये भी बताओ कि तुम्हें किस तरह की गलतियों से सीखा जा सकता है? बिल्कुल सर, तब तक मैं थोड़ा सा स्कॉलर्स को बता देना चाहूंगी कि Yes, now I am ready. सर जो है हिंदू यूनिवर्सिटी अब मेरी आवाज जा रही है आप लोगों को ठीक से? यस सर। चलिए, आपकी बिल्कुल साफ साफ आवाज आ रही है। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत सुनने में हो तो प्लीज आप लोग मुझे इंटीमेट कर दीजिएगा। और सबसे पहले आई एम रियली थैंकफुल टू दिस एसोसिएशन, इंडियन रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन। जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे तो वी नेवर थॉट ऑफ कि कोई ऐसा एसोसिएशन रिसर्च स्कॉलर्स का भी होना चाहिए, लेकिन ये बड़ा ही नॉवेल और बहुत ही एक तरह का सार्थक प्रयास है, जिसके माध्यम से मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों से जुड़े हुए हैं। डिफरेंट तरह के डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से लोग जुड़े हुए हैं। तो ये जो अनुभव शेयर करना है, जो एक दूसरे के साथ जुड़ना है, ये आपकी रिसर्च को एक नया पेस और नया आयाम देगा। तो मैं समझता हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके बोलने में ठीक रहेगा विकास जी? यस सर, यस सर। मिक्स लैंग्वेज वुड बी फाइन विकास जी। कहाँ आप सुन नहीं Yes, पा sir. रहे? जी सर जी। और मैं इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जितने सदस्य हैं, कई सारे सदस्य हैं, खासकर विकास जी, साक्षी, मेधा, विजय, कनेशी जी, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक और शेयर माय आइडिया, शेयर माय व्यूज। और प्रमेश जी जो सिक्किम यूनिवर्सिटी से हैं, हमारे मित्र हैं, एंड पहली बार मिले हैं, लेकिन बड़ा अच्छा लगा उन्हें देखकर, इसलिए मैं कह रहा हूँ वो मेरे मित्र हैं। बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आती है जिनके साथ वी जनरली ट्राई टू एसोसिएट विद देम। मेरी दोस्त यहाँ पे दिव्या जी जुड़ी हुई हैं और बहुत सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। धुनीराज क्षेत्री जुड़े हुए हैं, जो मैं बहुत दिनों बाद वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे इनको देख पा रहा हूँ। और कई लोगों को मैं नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी देर से स्क्रॉल कर रहा था कि कौन से लोग जुड़े हुए हैं, मैं देखने में बड़ा इंटरेस्टेड था। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम, I'm really thankful to all of you for giving me the chance to speak in front of all of you. एक बात मैं बहुत स्पष्ट करना चाहूँगा कि आप डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से जुड़े हैं और बहुत प्रतिष्ठित संस्थानों से जुड़े हैं, तो शायद मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि मैं ये बताऊँगा कि रिसर्च एक्सीलेंस या एकेडमिक राइटिंग कैसे की जाए, साइंटिफिक राइटिंग कैसे की जाए, ये आपके सुपरवाइजर शायद मेरे से बेहतर जानते हों, आपकी ट्रेनिंग इससे बेहतर हो सकती है। लेकिन हम कुछ ऐसे मूलभूत मुद्दों पर बात करेंगे, ऐसे बेसिक इश्यूज पर बात करेंगे जो हम जानते हैं और इसके बावजूद भी इग्नोर करते हैं, इसके बावजूद भी हम गलतियां करते हैं। उन गलतियों को हम ट्रैप करने की कोशिश करेंगे और आगे हम शायद अगर ऐसा करें तो आवर राइटिंग वुड सर्टेनली लीड अस टुवर्ड्स एकेडमिक एक्सीलेंस। So there are challenges, there are opportunities in everything, in every task. So research writing is not free from it. All right. So now I am proceeding with my slides. ये बड़ा ही छोटी सी शुरुआत हमने करने की कोशिश की है। आप संजय जी नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर। हम लोग बातचीत शुरू कर चुके हैं हमारे हाँ, मैं देख रहा हूँ, आप कंटिन्यू करें बस। और बहुत ही प्रसन्नता हुई सर आपको देख के, और आपके फीडबैक बड़े इम्पोर्टेंट। हमारे स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू सर। तो अब हम ये शुरू करते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि हम बहुत कुछ जानना चाहते हैं, बहुत सारे विषयों के बारे में जानना चाहते हैं, बहुत सारे विषयों की बारीकियां और नुआंसेस को जानना चाहते हैं, लेकिन कई बार
अगर हमसे कोई अचानक के सवाल पूछ दे कि हु यू आर, आप कौन हैं, आप अपने बारे में क्या जानते हैं, तो अगर मैं आपसे बिना इसका उत्तर मांगे पूछूं कि आप अपने बारे में क्या जानते हैं, अगर मैं कहूं कि आप अपने आप को 5 शब्दों में या 5 सेंटेंस में अपने आप को डिस्क्राइब करने की कोशिश कीजिए कि हु यू आर, so I'm sure that many of you would stuck and they will थोड़ा सा आपको असहजता लगने लगेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने बारे में भी जानें। एक ऐसे ही इंटरेस्ट पर्पस से मैंने लुकिंग ग्लास सेल्फ का एक कॉन्सेप्ट जो कूले के द्वारा दिया हुआ था, अब अगर आप अपने बारे में जानने की कोशिश करें तो आप अपने बारे में या तो खुद इंट्रोस्पेक्शन करते हैं या आपके आसपास के रहने वाले लोग, आपके समाज के लोग, आपके परिवार के लोग, दे टेल यू हु यू आर। अगर आप अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं और कहते हैं कि कोई कहता है बहुत स्मार्ट लग रहे हो, देन यू बिकम हैप्पी। आपका ये जो फीचर है ये बहुत अच्छा है। आप उन बातों को डिलीट नहीं करते हैं अपनी मेमोरीज से, डिलीट नहीं करते हैं अपने व्यक्तित्व से, आप उसको याद रखते हैं। आपसे कोई कहता आप कितना अच्छा बोलते हैं, तो आप खुद को जानने, अगर आप अपने बारे में जितना जानते हैं, देयर आर 2 कंपोनेंट्स। एक तो आपको लोगों ने बताया कि हु यू आर, आप बहुत अच्छे हैं, या कई बार लोगों को ये भी कहते सुना गया है कि इनमें ढेर सारी कमियां हैं। तो आपके नोन पार्ट जो है, आपका अपना जो नोन एस्पेक्ट है, देयर आर 2 कंपोनेंट्स जो आप खुद से अपने आप को खंगालते हैं, खुद से देखते हैं, और दूसरों के माध्यम से देखते हैं, जिसको कूले ने बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए थे, लुकिंग ग्लास सेल्फ। हम दूसरों को एक मिरर की तरह लेते हैं, दूसरों को एक मिरर की तरह लेते हुए अपने आप को उनके थ्रू रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन ये रिफ्लेक्शन बहुत आसान है, लोग तरह तरह से हमें रिफ्लेक्ट करते हैं और वो कॉन्सेप्ट्स हम अपने पास रखते हैं, लेकिन कई बार ये गलतियां होती हैं कि we fail to introspect who we are, which is very important. You should try to understand who you are. You should try to look into yourself. आप कौन हैं, इसके बारे में हमें जरूर समय निकालना चाहिए जानने के लिए कि हम क्या हैं, हम क्या चाहते हैं। मैं आपके साथ कुछ अनुभव ऐसे शेयर करना चाहूँगा। मुझे लगता है कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब स्टूडेंट पीएचडी में इनरोल्ड होते हैं, पीएचडी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, अगर उनसे ये पूछा जाए कि आप क्यों आ रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं, तो शायद बहुतों के पास इसका जवाब नहीं होता है, बहुतों के पास बहुत सैटिस्फैक्टरी जवाब नहीं होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप किस मुद्दे पर शोध करेंगे, जो विद्यार्थी, चूंकि रिसर्च स्कॉलर्स का फोरम है, तो ये प्रॉब्लम्स वी ऑल हैव फेस्ड, और कई बार हमें नहीं पता होता कि हम कौन से टॉपिक पे काम कर रहे हैं, किस इशू पर काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इसकी सार्थकता क्या होगी, इससे जो रिजल्ट्स होंगे, इसकी जो फाइंडिंग्स होंगी, उन फाइंडिंग्स के एप्लीकेशंस क्या होंगे। Generally, some topics are given by our supervisor, are given, taken by us, are influenced by our seniors, and we keep on working for 4-5 years and many times 6-7 years. हम time, money, and our hard work, everything is devoted, but we do not ask that what would be the possible implications of this research work. ये सवाल बहुत सारे लोग नहीं पूछते। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबडी, देयर आर सम अवेयर ग्रुप, कुछ ऐसे लोग हैं जो ये जानते हैं वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बट कुछ लोगों को नहीं। एवरीबडी शुड नो दैट व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट कुड बी द पॉसिबल एप्लीकेशंस। ऑलराइट, तो मैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए, and I have divided my entire lecture in 3 phases. So I'll begin with phase 1. और इस फेज 1 में आई वुड बी टॉकिंग अबाउट सम मार्वलस रिसर्चेस, सम वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्चेस जिससे आप परिचित होंगे, और इन रिसर्चेस का क्या इम्पैक्ट था आप देखेंगे यहाँ पे। और स्पीकिंग फ्रैंकली, रिसर्च स्कॉलर या रिसर्चर एक
बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटिटी है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है किसी भी देश के विकास के लिए, किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए. बट दे शुड नो दैट व्हाट दे कैन डू, व्हाट डिफरेंस रिसर्चर्स कैन मेक. हमें लगता है कि वी आर डूइंग अ रिसर्च ऑन अ टॉपिक, बट आर research can change the face of entire nation, can change the face of entire society. Let us see how. I am going to share two very renowned researches, और आप में से उम्मीद मैं करता हूं कि बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे. Recently, we witnessed, or globe witnessed, a pandemic which is called as COVID-19 pandemic, which began in 2019 and अभी भी उसके प्रभाव खत्म नहीं हुए हैं. 2020 में एक बड़ी घटना होती है, और आपको पता है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एक जो मलेरिया की दवा थी, that was frequently used to treat COVID people, COVID patients, those who are infected with the COVID-19 disease. All right. और ये इंडिया में निर्मित दवा थी, एंड इंडिया सप्लाइड दिस मेडिसिन टू मेनी कंट्रीज. और इस तरह से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन ड्यूरिंग द कोविड पीरियड. ऑलराइट, क्योंकि उस टाइम कोई सेट मेडिसिन नहीं थी, कोई सेट प्रोसीजर नहीं था कि किस तरह से पेशेंट्स का, किस तरह से जो लोग इन्फेक्टेड हैं दे विल बी ट्रीटेड. ऑलराइट, 2020 में एक लैंसेट में एक लेख छपता है, लैंसेट में एक आर्टिकल छपती है, एंड दिस आर्टिकल वाज पब्लिश्ड बाय मनदीप मेहरा, Sapman Desai, and Frank and Patel, Amit and Patel. 4 authors were there in the article. मुझे लगता है कई लोग इस कहानी को पूरी तरह से जानते होंगे, बाद में आर्टिकल रिट्रैक्ट भी हो गया था, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू दैट स्टोरी. इस आर्टिकल में ये कंक्लूड किया गया कि उन पेशेंट्स को एक कंट्रोल ग्रुप को लेते हुए 65 कंट्रीज में एक स्टडी की गई, और जो लैंसेट में पब्लिश हुई, जिसको मैंने आपके सामने प्लेस किया हुआ है. इस आर्टिकल ने इस आर्टिकल की जो फाइंडिंग्स थी वह यह शो कर रही थी कि जिन पेशेंट्स को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दिया जा रहा था उनमें मॉर्टेलिटी का रेट हाई था कंपेयर टू अदर मेडिसिन्स जो कंट्रोल ग्रुप रखे गए थे. एंड दिस आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ दिस पेपर, दिस रिसर्च आर्टिकल इन 2020, hydroxychloroquine was banned in 54 countries. WHO, the DGWHO, he called a press conference, and hydroxychloroquine was banned in 54 countries. The supply was entirely banned for 15 days. That was initially banned for the 15 days. It was a research. It was a research paper which shook the whole ग्लोब. एक शोध पत्र ही था, जिस तरह के शोध पत्र आप लिखते हैं, जिस तरह के शोध पत्र हम सबके हैं. It was mere a research paper which was published in a magazine, which was published in a journal. So I just want to let you know that what difference researchers can make, what kind of changes researchers can bring. All right. और मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ. आप चूंकि आप रिसर्चर हैं, यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट योर पोटेंशियल. जो मैंने पहली स्लाइड में शुरुआत की थी, यू शुड इंट्रोस्पेक्ट, यू शुड नो अबाउट योरसेल्फ. आप आर्टिकल छपने के लिए आप इसलिए कई बार स्ट्रगल करते हुए पाए जाते हैं क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आप करना क्या चाहते हैं, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स. ऑलराइट, and you never try to explore your interest. All right, many of you, I'm not talking about all, make sure many of you are doing very good research और बहुत अच्छे या बहुत उम्दा किस्म के रिसर्चर होंगे. But I am just trying to bring bring an important fact to your notice, that what a research paper can do, what some researchers can do, what a research findings can do. 15 दिन के लिए पूरे देश में, पूरे दुनिया में इस दवाई की, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की सप्लाई बंद हो गई पूरी तरह से. दिस इज व्हाट आई जस्ट वांटेड टू शो, दैट my objective is to show what difference a researcher or the team of researchers can make. All right, एक और इम्पोर्टेंट मैं शोध आपके साथ शेयर करना चाहूंगा. होप आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू. कोई तकलीफ तो नहीं हो रही सुनने में? No, sir. No, sir. Okay, thank you.
एक और बड़ी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, एक फर्म का किया हुआ शोध है, एंड यू ऑल आर अवेयर अबाउट अडानी क्राइसिस, है नो। अभी जो अडानी के 54,000 करोड़, अभी कुछ ही दिनों की बात है कि मार्केट पूरी तरह से क्रैश कर गया, लगभग 50 से 60,000 करोड़ रुपए मार्केट गिरी है, एंड लगभग 22% शेयर्स गिरे हैं। यहाँ जो इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी होंगे, दे वुड बी नोइंग एग्जैक्ट फिगर, बट what was the reason behind it? You can see what was the basis and what happened कि अडानी के साथ या मार्केट इस तरह से क्रैश किया, और ये एक जो बिजनेस, एक जो ग्रुप है जो इतनी तेज प्रोग्रेस कर रहा है, यू कैन सी देयर प्रोग्रेस एंड यू कैन सी द प्रोग्रेस ऑफ अडानी कंपनीज ऑफ अडानी। एक शोध की रिपोर्ट आती है, हिंडनबर्ग रिसर्च फॉर्म, एक बहुत छोटी सी फर्म है, हिंडनबर्ग यूएसए की फर्म है, एंड दे पब्लिश्ड अ रिसर्च, एंड दे टुक 2 years लॉन्ग टाइम, एंड उन्होंने इस रिसर्च के माध्यम से, इस शोध के माध्यम से 88 क्वेश्चंस उठाए, और इस शोध के पब्लिश होते ही, और इस शोध ने यह साबित किया कि अडानी ग्रुप्स जो थे वो शेयर बाजार में गलत तरीके से निवेश कर रहे थे, पैसा गलत ढंग से बाहर भेजा गया था, जो सामान 15 रुपए की थी उसे 100 रुपए का दिखाया गया था, तो अपनी कंपनियों की जो साख है उसे बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया था, और कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, 85% तक अडानी ग्रुप के शेयर गिर गए। लगभग 54,000 करोड़ रुपए अडानी ग्रुप के शेयर को नुकसान होता है। एंड यू कैन सी, यू नो, एंड आई एम अगेन सेइंग दैट आई एम नॉट टीचर ऑफ इकोनॉमिक्स, और आई हैव नेवर बीन द स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। जो इकोनॉमिक्स के हैं वो प्रिसीजन के साथ इन आंकड़ों को जानते होंगे, बट what made these things to happen? एक रिसर्च रिपोर्ट थी जो 2 साल में एक रिसर्च हुई थी, and just letting you to know that what difference, again I am repeating, again and again I am repeating that researchers are very important entity, and research or publication of any important research can change the face of any group, any community or any country. All right, so research is very important, so you should know about yourself, you should try to introspect that ये कुछ अलग से लोग नहीं है, ये आप जैसे रिसर्चर हैं, हमारे जैसे रिसर्चर हैं, they are making difference, and हमारे यहाँ कई बार लोग स्ट्रगल कर रहे हैं डिफरेंट इश्यूज को लेके। मैं एक ही बात को दोषी मानता हूं कि हम शायद अपने इंटरेस्ट को, हम क्या चाहते हैं इस बात को हम ध्यान नहीं दे पाते। इसके कई फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम क्या करना चाह रहे हैं, और हम जो करेंगे उसके आउटपुट जो होंगे उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा, वो किस तरह के परिवर्तनों को ले आएंगे, किस तरह के नॉलेज का क्रिएशन होगा। सो you are very important, and this entire group is very important, and this is one of the best lecture of my life I am delivering, कि मैं रिसर्चर्स के एक ग्रुप से अपनी बात साझा कर रहा हूँ, और ये मुझे लगता है मैंने बहुत सारे लेक्चर्स दिए हैं, लेकिन इस लेक्चर्स में ये सबसे स्पेशल लेक्चर है कि मैं शोधकर्ताओं के समूह के साथ अपनी बातचीत कर रहा हूँ। सो इट्स रियली ग्रेट टाइम फॉर मी। मैं आपसे अपनी बातचीत आगे जारी रखूंगा। मैं 2 शोध आपके साथ शेयर करना चाहता था कि एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च का क्या योगदान हो सकता है। नाउ आई एम प्रोसीडिंग। अब बात ये उठती है कि क्या हमारे देश में रिसर्च कम हो रहे हैं, क्या हमारे देश में रिसर्च की क्वालिटी किस तरह की है। अगर किसी सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट रिसर्च पे डिपेंड करता है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रिसर्च पे डिपेंड करता है, रिसर्च के माध्यम से डेवलपमेंट हो सकता है, देन व्हाट इज हैपनिंग इन आवर कंट्री। And one of my professor, Professor A.K. Dalal, he was a great, psychologist. He was, he is known for writing his writings in Indian psychology, and he has published many research papers. आप Professor A.K. Dalal करके आप अगर कभी Google पे डालेंगे तो आप you will be able to find out many research papers,
आपको मेथडोलॉजी के बारे में जो बात उसमें मिलेगी, यू विल बी हैप्पी एंड यू विल अप्रिशिएट। अगर रिसर्च के मामले में देखें तो इंडिया में रिसर्च शायद दुनिया में जितनी होती है उसके दूसरे तीसरे नंबर पे हमारा रिसर्च, जो रिसर्च करने का एवरेज है वो शायद दुनिया में तीसरे चौथे पे है, यहाँ डेटा के अनुसार तीसरे नंबर पे है। लेकिन अगर आप देखें कुछ आंकड़े तो हमारे जो रिसर्च के आउटपुट हैं, हमारे रिसर्च का जो साइटेशन है, किस तरह से हमारे रिसर्चेस को एक्नॉलेज किया जा रहा है, अगर आप देखें तो 1998 में 2010 के बीच तो टॉप 10 में भारत के रिसर्च पेपर्स साइट ही नहीं हुए या उनके रेफरेंस को नहीं दिया गया है। 2000 अगर आप 2018 से 20 के बीच में देखें तो ये थोड़ा साइट पेपर्स थोड़े साइट हुए हैं, लेकिन ये 7वें 8वें नंबर पर है। प्रॉब्लम कहाँ है? Means research, researches are happening in our country. Researches, many research papers are being published. Many PhDs are being awarded. सब कुछ हो रहा है, but we are absent from the global platform. अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, क्योंकि जब मैं इंडिया में रिसर्च की बात कर रहा हूं तो जो 74 लोग इस टाइम यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो 70-75 लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट यू, आई एम टॉकिंग अबाउट मी एज वेल। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ है कि रिसर्चेस पेपर आर कमिंग, वी आर पब्लिशिंग रिसर्च पेपर, बट दे आर नॉट विजिबल एट द ग्लोबल प्लेटफॉर्म। चलिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म को हटा देते हैं, दे हैव लिटिल इम्पैक्ट इन इंडिया एज वेल। ना तो कॉमन इंडिविजुअल तक उसकी पहुंच है, ना तो उसका प्रभाव है। So this is very important question. ये क्वेश्चन हमें किसी और से नहीं पूछना, because we all are in academics. ये सवाल हमें खुद से पूछना है कि what can be done and what wrong is going on, what wrong is happening, what is wrong with this? कि हम पेपर छाप तो रहे हैं बट हमारे पेपर इम्पैक्टफुल नहीं है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात, आपको सबको ये बात हाईलाइट हो रही होगी कि शायद हमारे जो पेपर्स हैं, शायद जो हमारे रिसर्च आर्टिकल्स हैं, दे आर नॉट क्रिएटिंग नॉलेज। किसी भी शोध का या किसी भी साइंस का अगर आप अल्टीमेट गोल देखें तो किसी भी साइंस का अल्टीमेट गोल होता है ह्यूमंस की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाना, किसी समाज की जीवन की गुणवत्ता स्तर को बढ़ाना। एंड यू कैन थिंक ऑफ, यू कैन सी कि आपके रिसर्चेस किस डायमेंशन में फिट हो रहे हैं, आपके शोधों से किस तरह का नॉलेज क्रिएट हो रहा है। अगर नॉलेज नहीं क्रिएट होगा तो देयर विल बी नो कंज्यूमर। आपके रिसर्च को कौन देखना चाहेगा? आप जिन पे आंकड़े एकत्रित करते हैं, जिन पे आप डेटा कलेक्ट करते हैं, अगर आप उनको ही अपना पेपर ले जाकर दे दें, अगर उसमें कोई काम की बात है तो दे विल बी हैप्पी दैट यू आर डूइंग समथिंग, यू आर ब्रिंगिंग सम नॉलेज, यू आर एडिंग समथिंग टू देयर नॉलेज। लेकिन हो सकता है कि ऐसा कुछ उनके लिए नया नहीं होगा, उनके नॉलेज में कोई वृद्धि नहीं होगी, तो दे विल नॉट अप्रिशिएट, नोबडी विल अप्रिशिएट। So this is what is happening with Indian researches, what is happening with our researches. Make sure अगर हम बात कर रहे हैं भारत में हो रही शोधों की, तो मैं सिर्फ आपके बारे में बात कर रहा हूँ, खुद के बारे में बात कर रहा हूँ, रेस्ट की बात हम लोग बाद में कर लेंगे। हम जो इस प्लेटफॉर्म पे हैं, वी शुड थिंक अबाउट आवरसेल्फ कि हमें क्या करना चाहिए कि हमारे शोधों की गुणवत्ता बढ़े, हमारे शोधों के लिए कंज्यूमर्स हो, हमारे शोधों के माध्यम से नॉलेज क्रिएट हो। क्योंकि नॉलेज, जो भी आप शोध करते हैं, या तो उससे कोई नया नॉलेज क्रिएट होता है या कोई एग्जिस्टिंग नॉलेज में कुछ वृद्धि होती है। अगर ये दोनों नहीं होता है तो योर शोध और योर रिसर्च हैज नो वैल्यू। हो सकता है आपके पीएचडी जमा करने का क्रेडिट मिल जाए, हो सकता है आपको उससे कुछ मॉनेटरी लाभ मिल जाए, नौकरी मिल जाए, एवरीथिंग यू कैन गेट, बट आउटसाइड वर्ल्ड में इट हैज नो वैल्यू। This is what exactly happening with the researches published in India. और मैं प्रोफेसर दलाल के बारे में बात कर रहा था। प्रोफेसर दलाल यही बात कहते थे, he has been my teacher, he is no more, अभी नहीं है वो। कहते थे कि भारत में शोध तो होती हैं, बट जो शोध की मेथडोलॉजी है, जो शोध की गुणवत्ता है, वो बहुत खराब है। इसलिए हमारी रिसर्चेस को ग्लोबल एक्नॉलेजमेंट नहीं है, हमारे रिसर्च ग्लोबल लेवल पे विजिबल नहीं है। हम सब भी कई बार ये बात करते हैं कि हमें स्कोपस में छपवाना है,
हमें इस जर्नल में छपवाना है, हमें इस पेपर यहाँ इस किताब में, इस पत्रिका में अपने शोध पत्र को छापना है, शोध पत्र को। लेकिन हम स्ट्रगल करते पाए जाते हैं। स्ट्रगल हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने इंटरेस्ट के साथ काम नहीं कर रहे हैं कि हम करना क्या चाहते हैं। अगर हम ये जान लेंगे ये हम कर रहे हैं और इसका ये आउटपुट है, तब हमारा पूरा मन लगेगा, हम हमारी पूरी मेहनत, जितनी मेहनत कर पा रहे हैं उससे भी ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे और शायद तब हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो ऑन द होल अभी तक जो बैकग्राउंड है, अभी तक जो ग्लोबल लेवल पे जो हमारी इमेज है, वी आर hardly visible at global platform. Our research papers, our research articles are published and are being published in Q3, Q4 journals. Many, only few research papers are getting good good publicity or acknowledging. People are barely acknowledging. People at global platform are it's a bare acknowledgement. तो अब ये समस्या से हम क्या करें? What could be the possible solutions? इसको मैं अपने थर्ड फेज में बात करूंगा कि अब हम करें क्या। अगर हमारे शोध हो रहे हैं बट दे आर नॉट गेटिंग गुड प्लेटफॉर्म, दे आर नॉट exerting its impact neither in society nor at the global level, तो हमें करना क्या है? ये सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए, एक दूसरे के साथ हमें डिस्कस जरूर करना चाहिए। तो फेज 2 में हम बात करेंगे करें क्या। तो now the question arise about the quality of research. Undoubtedly, if our researches are struggling, if we are struggling at global platform, or अगर नेशनल लेवल पे बात करें तो हमारे शोध कम इम्पैक्टफुल हैं, ना तो हम सामाजिक समस्याओं का समाधान कर पा रहे हैं अपने शोधों के माध्यम से, ना तो हम साइंटिफिक किसी तरह का एडवांसमेंट कर पा रहे हैं, बहुत स्लो है पेस। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्वालिटी कंप्रोमाइज हुई है, कहीं ना कहीं हमारे शोधों की क्वालिटी गड़बड़ है, जिसपे हमें काम करने की जरूरत है। तो इसलिए हम आपसे ये बात करना चाहेंगे कि वी शुड टॉक अबाउट वी शुड फॉलो साइंटिफिक अप्रोच। ऑलराइट, साइंटिफिक अप्रोच की जो प्रविधियां हैं, किस तरह से साइंटिफिक अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, इसको मैं आपसे ब्रीफ में यहाँ पे चर्चा करूंगा और बहुत सारे आप लोग जानते होंगे, तो हम लोग लास्ट में इसके बारे में बातचीत भी करेंगे। So let's talk about what scientific method is all about. And जब हम scientific method की बात करते हैं, हम scientific तरीकों की बात करते हैं, तो we talk about some systematic approach. Alright, और systematic approach से जो knowledge gain होता है, ये acceptabilities की ज़्यादा होती है, generalizabilities की ज़्यादा होती है, इसके प्रति स्वीकार्यता ज़्यादा होती है। This is what we are lacking in the present time. We are violating scientific decorum, we are violating scientific temperament. That is why we are struggling at the global level, or we are not impactful at the national level as well. Alright, तो scientific level है क्या? और ये बहुत छोटी सी बात है। यहाँ पे मुझे लगता है धुनीराज अगर होंगे इस प्लेटफॉर्म पे भी जुड़े हुए, तो एक बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट था। I did this exercise with them when they were there in Sagar University when they were doing their PG. So एक बड़ा मैं छोटा सा आपसे एक्सपेरिमेंट है आपके साथ साझा करना चाहूँगा, आपके इस पे कमेंट्स भी चाहूँगा कि एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट ये है कि जब से वर्ल्ड वॉर 2 में 6 और 9 अगस्त को एक घटना हुई थी कि अमेरिका ने जापान के ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर 2 परमाणु बम गिराए थे, एक 6 अगस्त को, एक 9 अगस्त को, और 14 अगस्त को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। जापान ने अपनी हार मान ली थी। इसके साथ ही वर्ल्ड वॉर 2 समाप्त होता है। अब ये स्टोरी है, और इसके बाद से जो जापानीज पीपल हैं, दे डू नॉट यूज अमेरिकन गुड्स। इसके पीछे क्या कारण आप देखते हैं? अगर आप बोलना चाहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। 6 और 9 अगस्त को एक घटना होती है, हमारी अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम गिराए। उसके बाद से जापानीज पीपल दे डू नॉट यूज गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन अमेरिका। कुछ कहना चाहेंगे इस पे आप लोग? अगर कुछ लोग बोले तो अच्छा रहेगा। कोई बोलना चाहेगा?
क्या कारण है इसके पीछे? क्यों ऐसा जापान कर रहा होगा कि दे आर नॉट यूजिंग थिंग्स और गैजेट्स मैन्युफैक्चर्ड इन अमेरिका, इन यूएसए? व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजंस? Anybody want to say something? कुछ बोलिए भाई आप लोग। जी अपूर्वा जी। Sir, please share the question again, sir. Okay. Sir, excuse me, sir. Yes, please, sir. Yes, sir. What is the question so that we can reply? Sorry. Sir, during World War II, America damaged two cities of Japan, that is Hiroshima and Nagasaki, on 6th and 9th August, and on 14th August, Japan surrendered. All right. So since then, there was an experiment in social psychology. Since then, Japanese people do not use. Sir, the reason why Japan got surrendered is due to the havoc as well as the post-mortal effect of this radiation, as well as they have destroyed two trade cities of the Japan city. Then they threatened that if we are not get surrendered, similar consequences will be there in more cities. So Okay. that is the reason why Japan got surrendered. Sir, my question was slightly different. Since then, Japanese people do not use gadgets or art. Them in that country if they ban it from America, sir. So nice, sir. Or anybody else? सर उनके बीच में समझौता हुआ था कि अब ना तो वो युद्ध करेंगे और ना ही किसी प्रकार से कंपटीशन करेंगे अमेरिका के साथ। Okay, sir. Thank you so much, sir. Anyone else? कोई और बोलना चाहेगा? एक्चुअली सर जापान ने पहले अमेरिका की एक आइसलैंड पर ये करा था, पहले जाके मतलब वहाँ पे जाके क्या करते हैं बम गिराए थे। इसके बदले में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर वो बम गिराए थे। तो फिर उसके बाद में समझौता हुआ कि अमेरिका के वजह से जापान का वो दो सिटी और उससे भी सराउंडिंग सिटीज वो भी अफेक्टेड हुए। तो फिर उसके लिए उसको मतलब उसके बाद ये करा कि वो जापान का जो जितना भी रिसोर्सेस अफेक्टेड हुआ, उसके बाद वो अमेरिका ने ये समझौता करा कि वो इसके बाद जो भी जापान को अटैक करे वो अमेरिका का सब लोग मतलब सब फोर्स ऐसे ही खड़ा रहेगा सामने से। Thank you, sir. Thank you so much, sir. It was an experiment. Now I am continuing with my topic. It was mere an experiment. और ऐसा बिल्कुल नहीं था। और मैं एक शोधकर्ता के लिए बात, I am talking for a researcher. It was a very important experiment. अगर आपके सामने कोई फैक्ट्स आते हैं, when you are given certain facts in the form of information, you should critically examine those information. All right, only then you should draw any conclusions. First, your first task is to critically examine the fact that whether the fact is correct or not. What I am telling is correct or not. इतना एक्सपेरिमेंट था कि ये बिल्कुल ऐसा कुछ है ही नहीं है. जापानीज पीपल दे फ्रीक्वेंटली यूज एप्पल लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, दे फ्रीक्वेंटली यूज गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन अमेरिका. सो एक रिसर्चर को वी ऑल आर बम्बार्डेड विथ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. एंड अगर आप सोशल मीडिया के टाइम में देखें तो वी आर driven by a flow of information, and we are failing to examine which information is correct or which information is incorrect.
So as a researcher, common people, layman, if they are doing such mistakes, it is one thing. But as a researcher, you are supposed to critically examine each and every fact when it is coming in front of you. तो ये इस फैक्ट को सबसे पहले एग्जामिन करने की जरूरत थी, जो एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य था कि whether this fact is right or not. Japanese people frequently use manufactured in, बाकी इस पे बाद में डिस्कस करेंगे. Method करने का ways through which I created this gate and them. Just a minute. क्या स्लाइड रमा जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप कैमरा ऑफ कर दे, क्योंकि आप बार बार यॉन कर रहे हो और वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है. some problem due to network, due to internet. I'm trying to read it. सर की आवाज कट रही है क्या मेघा जी? हाँ जी, आवाज कट रही है, शायद सर का नेटवर्क इशू हो रहा है. सर मैसेज. हाँ, कोई नहीं, लेट्स वेट. अभी तो सर शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं, आई गेस. रामा जी का कैमरा ऑन है, प्लीज हाँ जी मैम. कैमरा ऑफ कर दीजिए. जी मैम, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप कैमरा ऑफ कर दीजिए, क्योंकि आप बार बार यॉन कर रहे हैं और वो ना आ रहा है मीटिंग में, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है. आप सब जुड़े रहिए हमारे साथ. शायद थोड़ा नेटवर्क इशू हुआ है, तो सर जुड़ रहे हैं, जल्दी सर हमारे बीच में होंगे. मेघा मैम. जी सर. हेलो सर. सर ये पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट देंगी? सर अभी तो आप सेशन, आई होप ठीक है सर, कनेक्ट लग रहा होगा. नहीं, जी सर. वो तो अटेंड कर रहे हैं और करेंगे, पूरा करेंगे. जी. मैं उसमें ग्रुप में भी पूछ रहा था कि क्या सर्टिफिकेट अवेलेबल करवाएंगे क्या. मैं इस विषय में पता करके आपको जरूर बताऊंगी. ठीक है. Ma'am, actually Megha ma'am, because this certificate, it is very important for the research scholar. Like we were doing the research, so we have attended the session like that organized by you people, and it is useful for us. So the certificate actually plays a very important role for us as a researcher. यस मैडम, मैं भी मैडम से सहमत हूँ, और ये मिलना ही चाहिए, क्योंकि हमने इतना टाइम भी इन्वेस्ट किया है. Invest, yes, right. We invested our time, so yeah. So Exactly. We will मेघा, look into the issue, ma'am. हाँ, मेघा मैडम से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ऑर्गेनाइजर से कहिएगा, जरूर हमको एक सर्टिफिकेट दें. बिल्कुल सर, मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट ऊपर तक लेके जाऊंगी सर. थैंक यू. श्योर वी विल लुक इनटू द मैटर सर. thank you, Uday sir. जी, मेरी अगर आवाज आ रही हो कि
गूगल लिंक से जो सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है, आप उसको देख लीजिएगा। तो फीडबैक आप मांग लीजिएगा, और फीडबैक जब लोग देंगे तो ऑटोमेटिकली ऑनलाइन सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा, है ना। तो ये आप थोड़ा सा अगर चाहे तो कर सकते हैं, ये मेरा सुझाव है। और बाकी सर सबसे अच्छी बात ये है कि ये पूरे जो रिसर्च स्कॉलर जो भी टीम है उनके लिए हम लोग थोड़ा सपोर्ट करें, क्योंकि एक नए तरह का एक एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं इसको। और इनको मतलब प्रेशराइज ना कर रहे हैं, बल्कि इनको मोटिवेट करें, क्योंकि इन सब चीज़ों में थोड़ा सा वो चीज़ें भी आती हैं, दूसरे तरह की होती है। अच्छा ये होगा देवकीनंदन जी, डॉक्टर देवकीनंदन जी क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आई बात आपकी। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? हाँ, नहीं बताइए ना, एक बार फिर से बताइए। हाँ, मैंने कहा सर ऐसा हो जाए कि मेरा सुझाव था इस पूरी टीम के लिए कि जो गूगल फॉर्म के थ्रू एक जो फीडबैक लिया जाता है और उसके थ्रू जो एक ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है, उसका प्रयास किया जाए तो दोनों चीजें हो जाएंगी। आप मतलब जिन लोगों को सर्टिफिकेट भी चाहिए वो सर्टिफिकेट भी पहुंच जाएंगे, और हमारी टीम के लिए मतलब एक वो बर्डन नहीं होगा, उस तरह का एक प्रेशर नहीं होगा। और ये तरह के का एक कार्यक्रम है तो इसका एक मोटिवेशन मिलेगा, और चूंकि आगे भी हाँ सर, यू आर लाइव। हेलो, थैंक यू फॉर द सजेशन सर, इट हैज बीन नोटेड, और हम लोग जरूर देखेंगे सर इस चीज को। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। साक्षी जी। यस सर। हाँ, प्लीज कॉल टू नेक्स्ट स्पीकर। ओके। सर हम लोग के साथ फिर जुड़ेंगे थोड़ी देर में। हाँ जुड़ेंगे सर, अभी जुड़ेंगे। ओके। मैं विजय कुमार बेरा जी से रिक्वेस्ट करूंगी। एक मिनट, परमेश सर, आर यू हियर सर? हाँ देख, परमेश सर। हेलो, या यस सर, यू आर ऑडिबल सर। ओके साक्षी जी प्लीज सर। ओके सर। यस, मैं विजय कुमार बेरा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए और डॉक्टर परमेश छेत्री सर का इंट्रोडक्शन हम लोगों से दें। हम सभी सर से मतलब परिचित हैं, बट हमारे साथ ऑलमोस्ट 50 अबव लोग हैं, तो सर आए और सर का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे ताकि सब कोई सर से जुड़ सके और जान सके सर को। विजय जी। Thank you, Sakshi ma'am. On behalf of the Indian Research Scholar Association, I, Vijay Kumar Behra, Research Scholar at Guru Ghazidas Central University, Chhattisgarh, welcome Dr. Parmesh Chhetri sir to this virtual platform. It is my pleasure to introduce such a great personality in the field of academics. Dr. Parmesh sir is presently working as an assistant professor in the Department of Humanities and Social Science at Sikkim Manipal University. Sir has 10 years of teaching experience with an excellent academic contributions. He has published more than 10 articles in reputed journals and published 2 books on financial literacy. Including that, he has been associated with many prestigious academic responsibility at Sikkim Manipal University. Due to his academic contribution to the field of research, he has received the prestigious Young Research Award from Sikkim Manipal University. So without taking much of time, now I invite Dr. Parmesh sir to kindly deliver his lecture. Thank you and over to you. अच्छा विकास जी, मैं एक मिनट चाहूंगा जी संजय सर आप कंप्लीट कर दे, फिर परमेश सर करेंगे। जी सर, संजय सर। जी मैं बहुत माफी चाहूंगा। मैं अपनी बात बहुत शॉर्ट में खत्म करूंगा क्योंकि 10 मिनट ऑलरेडी चले गए हैं। इंटरनेट की कुछ प्रॉब्लम यहाँ हो रही है, लाइट की कट रही है, तो वाईफाई प्रॉब्लम करने लग रहा है। सो शैल आई बिगिन सर? जी मेरी आवाज जा रही है? हाँ जी आपकी आवाज आ रही है, आप स्टार्ट कीजिए। हाँ, मेरा स्लाइड आपको लोगों को दिख रहा होगा, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, स्लाइड शो हो रहा है? यस सर, इट इज विजिबल। चलिए, थैंक यू सो मच। आई एम रियली सॉरी। एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट द सोर्सेज ऑफ नॉलेज। और अगर आप देखें तो सोर्सेज ऑफ नॉलेज की बात करते हैं, और हम लोग साइंटिफिक रिसर्चेस की बात करना चाह रहे थे,
और एक बार रिदम टूटता है तो नो साइंटिफिक रिसर्चेस बिकम नो वेरी, ऐसे टॉपिक को लेना और इस तरह का रिदम टूटना, आई मस्ट अपोलोजाइज फॉर इट। आई विल ब्रीफली टॉक अबाउट स्टेजेस। सो क्या इंपॉर्टेंट क्या है व्हेन यू कम फॉर द रिसर्च? अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज रिसर्च क्वेश्चंस। डू यू हैव रिसर्च क्वेश्चंस? और किस मुद्दे पर आप रिसर्च करना चाहते हैं और उसके इंपॉर्टेंट रिसर्च क्वेश्चंस क्या हैं? तो कभी हम जाते हैं, कभी हम अपने सुपरवाइजर से बात करने जाते हैं तो हम कहते हैं कि सुपरवाइजर कहता है इस पे काम कर लो, या सुपरवाइजर इस तरह का इंस्ट्रक्शन देते हैं, या हम कहते हैं कि आप जो कहिए, या हमारे पास कुछ रिसर्च क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो हमारे पास वी शुड हैव वेरी रिलेवेंट और वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च क्वेश्चंस जिसका हम उत्तर अपने रिसर्च के दौरान पाना चाहते हैं। तो स्टेप 1 इज टू हैव important research questions or relevant research questions. Again, the important means what contribution your research would be making, you should be aware of it. और दूसरा जो महत्वपूर्ण स्टेप है, जो खासकर साइकोलॉजी और एलाइड सोशल साइंसेज में हम लोग या एलाइड डिसिप्लिन में हम जिन स्टेप्स की बात कर रहा हूँ, रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज इक्वली इम्पोर्टेंट, और आई वुड से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट because you may commit some mistakes अगर आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर ठीक से नहीं किया या आपने sufficient रिव्यू ऑफ लिटरेचर नहीं देखा। You may miss something which is important, या आप ऐसा कोई शोध कर सकते हैं, ऐसा कोई रिसर्च दोबारा कर लेते हैं जो ऑलरेडी हो चुका है। तो इस तरह के शोध का कोई जो बड़ी यूटिलिटी होना संभव नहीं, बिकॉज यू आर रिपीटिंग समथिंग, एंड रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू डिवोट टाइम, मनी ऑफ अ कंट्री, और कई बार आपको कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं। तो आपसे उम्मीद है कि यू विल कंट्रीब्यूट समथिंग, एज आई सेड इन द इनिशियल स्लाइड्स, कि आपका रिसर्च क्या किसी नए नॉलेज को क्रिएट कर रहा है या किसी नॉलेज में कोई वृद्धि कर रहा है। रिसर्च डिजाइन एक ऐसा इंपॉर्टेंट स्टेप है जो स्टेप 3 है किसी साइंटिफिक मेथड का। इससे ये आपको कंट्रोल करता है। अगर आप किसी मेथड, आप किसी डिजाइन को स्पेसिफाई कर लेते हैं कि दिस इज द डिजाइन, दिस वुड बी द डिजाइन ऑफ योर रिसर्च, सो यू नो इन दैट केस आप उससे डिविएट नहीं होते हैं, यू फॉलो सर्टेन प्रोसीजर्स। और अगर रिसर्च डिजाइन को कहें तो एक तरह का मास्टर प्लान होता है किसी रिसर्च को करने का, कि किस तरह से पार्टिसिपेंट्स को इकट्ठा किया जाएगा, या किस तरह से डेटा कलेक्शन किया जाएगा, किस तरह से डेटा या लोगों जो आंकड़े होंगे उसकी एनालिसिस की जाएगी, और किस तरह से एक कंक्लूजन पे पहुंचा जाएगा। तो डिसीजन रिसर्च डिजाइन इज अ काइंड ऑफ मास्टर प्लान ऑफ ए रिसर्च, एंड डिजाइन it is not only it does not it has many advantages because it controls many aspects of the researcher as well. तो researcher को एक important गाइडलाइन के रूप में होता है रिसर्च डिजाइन। बहुत सारी रिसर्च डिजाइंस होती हैं। एक बात आप याद रखें, as soon as you decide your research questions, your research design is determined at the same time. और डिफरेंट सोशल साइंसेस के डिसिप्लिन में डिफरेंट डिजाइंस का उपयोग करते हैं। तो अगर आपने यू डिजाइन्ड योर रिसर्च इन द रॉन्ग वे, देन व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस यू कैन अंडरस्टैंड। अगर आपने रिसर्च को गलत तरीके से डिजाइन किया या आपने एडिक्वेट रिसर्च डिजाइन नहीं ली, तो योर द आउटकम would be faulty. The outcome will have lesser or no utility. So research design, we should, there are a number of research designs. Due to paucity of time, I am unable to take, but I would advise the researchers who are present over here. Many have left due to network problem, but we should understand which kind of design is best suited to answer particular research questions. All right. And the step 4 of any scientific writing is data collection, and very important aspect, data collection कैसे होगा और डेटा कलेक्शन में कौन से टूल्स का उपयोग होगा। Nowadays, when I attend conferences, when I attend some gatherings, many times I am disappointed that researchers or research scholars are taking borrowed scales and they are blindly using without thinking about what would be the consequences. जो सेल्फ स्टीम आपके कॉन्टेक्स्ट में है, जो सेल्फ स्टीम की परिभाषा आपके परिवार में है, आपके कल्चर में है, that self esteem
that self-esteem cannot be similar to the self-esteem of the Western countries. So जो परिभाषा आपकी है उनकी परिभाषा बिल्कुल सेम नहीं है. अगर नहीं है तो you should be very careful and you should redefine your you should redefine concepts. You should have your own tools. All right, it is very important to have a suitable tool to measure some traits or some attributes. अगर आपने tools का गलत उपयोग कर दिया, you cannot expect from any knowledge, or the knowledge which will be created after processing the data, that would baffle you. एक तरह का भ्रामकता उत्पन्न होगी अगर आपके टूल से. अगर आप पार्टिसिपेंट्स को क्वेश्चनर दे देते हैं तो वो तो कुछ तो भर के दे ही देंगे, बट you should be aware of it, that what kind of questionnaires or what kind of questions you are using while collecting the data. अगर पॉसिबल हो तो आप अपने शोधों के दौरान कुछ क्वेश्चनर्स जरूर विकसित करें. बहुत छोटा काम है, बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ क्वेश्चनर्स या कुछ टेस्ट डेवलप करते हैं तो दैट वुड गिव original findings, that those findings will have some utility also. All right, so you should develop some tests. Sampling techniques बहुत ही important है किसी population में. और जब आप कुछ लोगों को किसी population से इकट्ठा करते हैं, डेटा के रूप में सैंपल करते हैं, the first important thing, you should know about that population. उस पॉपुलेशन में किस तरह के लोग रहते हैं, कितने मेल रहते हैं, कितने फीमेल रहते हैं, कितने थर्ड जेंडर रहते हैं, कितने डिसेबल्ड पीपल हैं. You should know everything about that population. Otherwise you will commit some mistakes. कि आप हो सकता है एक ही जंग से पॉपुलेशन ले ले, तो ऐसी स्थिति में जो फाइंडिंग्स होंगी that would not be applied on the whole population. अगर आप सैंपल एक कोने से ले लेंगे और जनरलाइजेशन पूरे पॉपुलेशन के लिए करेंगे, जो साइंटिफिक राइटिंग या जो साइंटिफिक रिसर्च का एक इंपॉर्टेंट आयाम है, जनरलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. आप जनरलाइजेशन करना चाहते हैं, सैंपल पे रिसर्च करके पॉपुलेशन पे जनरलाइज करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप सैंपलिंग एरर करेंगे तो जनरलाइजेशन वुड बी डिफिकल्ट, और योर फाइंडिंग्स cannot be, you won't be able to generalize your findings. All right, that is a limitation. So there are a number of sampling techniques. You can understand the paucity or the constraint of the time. अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब आपके पास आंकड़े आ जाते हैं तो आप कौन सी स्टैटिस्टिक्स या किस तरह की सांख्यिकी का उपयोग करें उन आंकड़ों को प्रोसेस करने के लिए, उनकी जांच करने या उनको एनालाइज करने के लिए. ऑलराइट, ये आप देखें, जिस तरह से मेरा कर्सर अगर आप देख रहे हो, तो हम हमेशा काम सैंपल पे करते हैं, रिसर्च सैंपल पे करते हैं, बट आवर इंटरेस्ट इज टू जनरलाइज दैट फाइंडिंग ऑन द पॉपुलेशन. हम सैंपल के लिए रिसर्च नहीं करते, हम रिसर्च तो करते हैं पॉपुलेशन के लिए. तो स्टैटिस्टिक्स एडिक्वेट होनी चाहिए. ओवर स्टैटिस्टिक्स या ढेर सारी स्टैटिस्टिक्स, या अगर आपको लगता है कि बेसिक या डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की जरूरत है किसी शोध डिजाइन में, किसी रिसर्च डिजाइन में, you should not make use of number of higher kind of statistics. तो स्टैटिस्टिक्स ऐसा नहीं कि आपके रिसर्च में कुछ ऐड कर देगा, बट यू शुड नो अबाउट द एडिक्वेट स्टैटिस्टिक्स. अगर आपकी रिसर्च डिजाइन, अगर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन आपने उपयोग किया है, तो आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ही उपयोग करना चाहिए, उसी से डेटा को एनालाइज करना चाहिए. अगर आपने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का उपयोग किया है, तब आपको टी और एनोवा के साथ जाना चाहिए. अगर आप अपने पॉपुलेशन के पैरामीटर्स नहीं जानते हैं, तो आपको नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स का उपयोग करना चाहिए. तो थिंग्स आर वेरी मच कनेक्टेड. रिसर्च क्वेश्चंस डिटरमिन रिसर्च डिजाइन के अनुसार ही रिसर्च स्टैटिस्टिक्स लगती है. किस तरह से सैंपलिंग हुई है, ये सारी चीजें ये डिसाइड करती हैं कि आप किस तरह की स्टैटिस्टिक्स का उपयोग करेंगे. स्टैटिस्टिक्स, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स could not be arbitrary. All right, the inferential statistics और descriptive statistics both are equal. आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने अपने शोध में सिर्फ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का उपयोग किया है तो ये लोअर लेवल स्टैटिस्टिक्स है. इट इज नॉट. इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ डिजाइन यू हैव यूज्ड इन योर रिसर्च. ऑलराइट, तो
ये कुछ जो 7वां स्टेप्स है, यू शुड प्रेजेंट, जब हमें डेटा मिलता है, लोगों से बातचीत करते हैं तो हमें रॉ इन्फॉर्मेशन मिलती है, और ये इन्फॉर्मेशन नॉलेज तक जाने में कई तरह का प्रोसेसिंग होता है, कई तरह के स्टेजेस से गुजरती है। अब अगर आप इनिशियल स्लाइड्स देखने, हम ये गेस कर रहे थे, इस बात का अंदाजा लगा रहे थे कि हमारी जो रिसर्चेस हैं, दे आर फेलिंग टू क्रिएट नॉलेज, they are failing to create knowledge which is important for any society, which is important for any nation. तो आप नॉलेज क्रिएशन आपका काम है। अगर आपकी रिसर्चेस से पुअर क्वालिटी का नॉलेज क्रिएट होगा, ऐसा नॉलेज क्रिएट होगा जो लोगों के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है, तो आपके शोध पत्रों को चाहे ग्लोबल लेवल हो चाहे नेशनल लेवल हो, you will not get consumers, you will not get people. All right. तो there are some steps in scientific researches. अब एक और भी महत्वपूर्ण बात है जिसको रिसर्च एथिक्स कहते हैं, और 2-3 बातों को मैंने आपसे प्रारंभ में 2 एक्सीलेंट या ऐसी शोधों को शेयर किया, ऐसी शोधों को साझा किया, ऐसे रिसर्चेस को कोट किया जो ह्यूमंस की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने वाली थी, या ह्यूमंस को जागरूक करने वाली थी, पीपल को जागरूक करने वाली थी। लेकिन कभी कभी रिसर्चर अपनी रिसर्च के प्रति इतना जुड़ जाता है तो वो कुछ ऐसे स्टेप्स ले लेता है, रिसर्च के डिटर्मिनेशन के साथ साथ कुछ ऐसा स्टेप ले लेता है जिसमें वो कुछ नैतिक मुद्दों का ह्रास कर देता है, कुछ नैतिक मुद्दों को वायलेट कर देता है। अब ऐसा वायलेशन मैं आपको 2-3 स्टडीज शो करूंगा। विकास जी, मैं 5-10 मिनट और ले सकता हूँ क्या, यद्यपि कुछ समय नुकसान हुआ है? श्योर। तो मैं 2-3 स्टडीज आपके साथ शेयर करूंगा जो आप इनसे परिचित होंगे। अब आप देखिए कि रिसर्चर और किसी भी शोध का उद्देश्य ह्यूमंस की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाना है, और जो मैंने आपको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो कोविड की दवा का शोध था और अडानी ग्रुप से संबंधित जो शोध हुआ था, वो लोगों को जागरूक करने के लिए थी, वो लोगों को कई तरह की समस्याओं से बचाने के लिए थी। लेकिन कभी कभी रिसर्चर ह्यूमंस नहीं होके सिर्फ रिसर्चर रह जाता है, तब वो कई इथिकल इश्यूज को वायलेट कर देता है। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि आप ह्यूमंस के साथ साथ रिसर्चर रहिए, अपने आप के ह्यूमंस को खुद से अलग नहीं करिए। मैं 2-3 इंपॉर्टेंट रिसर्चेस थी जिसने लोगों के कान खड़े कर दिए, लोगों को एक तरह से थ्रेटनिंग रिसर्चेस थी, किस तरह से लोगों को इन रिसर्चेस ने हार्म किया है, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये 3 शोध थे और किस लेवल तक इन रिसर्चेस में इथिकल इश्यूज को वायलेशन किया गया। नाजीज के कैंप को, अगर आप हिटलर के कैंप के बारे में आप जानते हो, तो वहां पे प्रिजनर्स बंद थे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लोगों को बंद रखा गया था, और प्रिजनर्स को, उन प्रिजनर्स, दे वर ह्यूमन बीइंग, दे वर ट्रीटेड एज द रिसर्च पार्टिसिपेंट इन द एक्सपेरिमेंट्स, और उनको लो प्रेशर चैम्बर्स में ये जानने के लिए, टेस्ट करने के लिए रखा गया कि किस तरह का प्रभाव एल्टीट्यूड का बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ता है। उनको लो प्रेशर चैम्बर्स में रखा गया जस्ट टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एल्टीट्यूड ऑन द ह्यूमन बॉडी। ऑलराइट, इसके साथ साथ जो प्रिजनर्स थे, इट वाज एक्सपेरिमेंट। ऑलराइट, तो इट वाज अ काइंड ऑफ रिसर्च जो किस तरह का थ्रेटनिंग रिसर्च है, यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड। इसके साथ साथ लोगों को फ्रीजिंग पॉइंट पर जो वाटर थे, पानी था, उसमें इस तरह से उनको सबमर्ज किया गया just to understand the treatment of hypothermia. All right, so और कई तरह के प्रिजनर्स को कई तरह की ट्यूबरकुलोसिस, थायराइड फीवर, येलो फीवर और हेपेटाइटिस जैसे रोगों की वैक्सीन बनाने के लिए उनको इन्फेक्ट कराया गया कि ताकि रिसर्चर ये समझ पाए कि कौन से शरीर के अंग या कौन से टिश्यूज प्रभावित हो रहे हैं, कौन सा पार्ट प्रभावित हो रहा है, तो उसकी वैक्सीन तैयार की जा सके। इसके लिए पीपल वर मेड टू इन्फेक्टेड, लोगों को इन्फेक्ट कराया गया डिफरेंट थ्रेटनिंग डिजीजेस से। तो इट वाज एन एक्सपेरिमेंट एंड इट वाज रियली थ्रेटनिंग एक्सपेरिमेंट। और मैं आपसे फिर दोहराऊंगा, सारे शोधार्थियों से जो यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं इनसे दोहराना चाहूंगा कि द गोल ऑफ एनी रिसर्च
is to enhance the quality of life, is to increase the quality of life of humans, not to threaten the quality of lives. All right, तो आप शोध करें, ह्यूमंस रहते हुए आप रिसर्चर बने रहें, आप अपने आप को ह्यूमन को अलग ना कर दें। जब आप अपने शोध की किसी फाइंडिंग के प्रति इतने डिटरमिन हो जाएं कि आप लोगों को क्षति पहुंचा दें, आप लोगों को हानि पहुंचा दें। एक और भी इंपॉर्टेंट स्टडी हुई थी जो गवर्नमेंट की स्टडी थी, देखो टस्कीजी सिफिलिस एक्सपेरिमेंट कहते हैं। यह एक्सपेरिमेंट यूएसए में हुआ था और सिफिलिस एक तरह की बीमारी है जिसमें शरीर के कई अंग प्रभावित हो जाते हैं, जैसे ब्रेन प्रभावित होता है, हार्ट प्रभावित होता, आई, लिवर, बोन्स, जॉइंट्स, इन पे बुरा असर पड़ता है इस बीमारी का, जिसके कारण लोग ब्लाइंड हो जाते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं और इनकी डेथ हो जाती है। क्योंकि सिफिलिस का कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं था, इसके लिए अमेरिका में गवर्नमेंट का यह शोध है, अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक शोध प्लान किया, जिसको अगर आप देखेंगे तो इस शोध में 600 लोगों को शामिल किया गया और उन्हें कहा गया कि आपको बैड ब्लड से बचने के लिए ट्रीटमेंट सुझाया जाएगा, जिससे आपको एनीमिया नहीं होगा, जिससे आपको किसी तरह की फटीग नहीं होगी। अगर आपके रक्त में किसी तरह की कोई समस्या है वो समझने के लिए शोध हो रहा है। और किया क्या गया, 600 लोगों को इस शोध में शामिल किया गया। 399 लोगों को 399 पीपल वर मेड टू इन्फेक्टेड विथ सिफिलिस। आप जैसा मैं बता रहा था, पीछे आपसे लिखा हुआ था, इस बीमारी से मेंटल डिस्टर्बेंसेस, ब्रेन डैमेज, ब्लाइंडनेस, इस तरह की बीमारियां होती थी। और अगर आप देखें इसका प्रभाव क्या हुआ, 600 लोगों में से 399 लोगों को इन्फेक्ट कराया गया और उद्देश्य कहा था, द पर्पस वाज टू डेवलप अ वैक्सीन फॉर द सिफिलिस। ऑलराइट, और किस तरह से सिफिलिस का कोर्स चलता है, किस तरह से सिफिलिस के लिए टीका तैयार किया जा सकता है और इसका प्रभाव क्या हुआ। 600 लोगों में से सिर्फ 72 लोग, 600 लोगों में से 399 लोग इन्फेक्ट हुए। और एक एक्सट्रीम वायलेशन ये हुआ कि 1932 में सिफिलिस का टीका तैयार कर लिया गया, लेकिन इन लोगों को 399 में किसी को नहीं दिया गया कि शोध बाधित होगा, सिफिलिस के पूरे कोर्स को समझा जाए। और उसमें 75 लगभग 74 लोगों की डेथ हुई सिर्फ सिफिलिस की वजह से। 100 लोग अदर कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मरे। कई लोगों के वाइफ्स या चिल्ड्रन को इस तरह का इन्फेक्शन हुआ। तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि एक टाइम आता है, एक शोधकर्ता, एक रिसर्चर इस एक्सटेंड तक चला जाता है अपने रिसर्च की किसी फाइंडिंग को प्राप्त करने के लिए, वो इनह्यूमन बिहेवियर कर देता है, जिसकी वजह से अन्य लोगों को क्षति हो सकती है, जिसके वजह से अन्य लोगों को नुकसान पहुंचता है, पार्टिसिपेंट्स को नुकसान पहुंचता है। इसी तरह ये 2 शोध मैंने आपसे इनिशियली 2 शोध कोट किए, जिन शोधों ने ह्यूमंस को जागरूक किया, जिन शोधों का उद्देश्य ह्यूमन की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाना था और वास्तव में बढ़ाया। लेकिन जो लास्ट के 2 मैं आपसे रिसर्च कोट कर रहा हूं, वो वही रिसर्च है जिन्होंने ह्यूमंस की क्वालिटी ऑफ लाइफ को थ्रेटन किया। और रिसर्चर तो वही है, रिसर्चर हमारे और आप जैसे हैं। और रिसर्चर यू शुड वर्क फॉर द क्वालिटी ऑफ लाइफ, यू शुड डू रिसर्च टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इंटेलेक्चुअल हैं आप, सारे इंटेलेक्चुअल्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर इंडिया में अगर आप देखें, आप भारतीय पर आप जिस देश में रहते हैं उस देश में ढेर सारी समस्याएं हैं, है ना। ढेर सारी समस्याएं सामाजिक स्तर पर हैं, ढेर सारी समस्याएं सिस्टम के लेवल पे हैं। लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर। और आप लोग कहते हैं कि प्रेस चौथा स्तंभ है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बाद, लेकिन चौथे स्तंभ सिर्फ प्रेस को कह के बात थोड़ी, ये जो कम्युनिटी है छोटी हो जाती है। आपकी वजह से कलम ताकतवर है। जो शोध करता है, शोधों की वजह से, रिसर्चर्स की वजह से, राइटर्स की वजह से कलम की ताकत बढ़ती है। और सिर्फ प्रेस ही नहीं, हम कहेंगे जो कलम की ताकत है वो चौथा स्तंभ है। आपको देश के लिए काम करना है, देश के लिए रिसर्च करना है, लेकिन उसके पहले जो सबसे बड़ा चैलेंज है, इथिकल इश्यूज का चैलेंज है। जब मैं इन लाइंस को देख रहा था तो मैं आपसे, मुझे लगता मैं अपने लेक्चर के आखिरी पड़ाव पर हूँ,
अगर आप ये देखेंगे तो इन लाइनों से आप बहुत परिचित होंगे कि तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। तो वास्तव में जो अपने बारे में नहीं जानता वो सच में मासूम है। ऑलराइट, किसी चीज को, और दूसरी जो लाइन से क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है, मतलब ये सबसे बड़ी खतरनाक स्टेज है जब आप खुद को नहीं जानते हैं। तो अगर आप एक शोधकर्ता हैं, अगर आप एक रिसर्चर हैं, तो अपने सबसे पहले आप शोध में कुछ ढूंढने से पहले खुद को ढूंढिए कि आप चाहते क्या हैं, आप किस तरह का शोध चाहते हैं, आप किस तरह का परिवर्तन चाहते हैं। मैं और भी शॉर्ट में कहना चाहूंगा, सबसे पहले खुद को जानिए कि आप चाहते क्या हैं, तब आप अपना 100% उस पर लगा पाएंगे, तब आप किसी शोध को या किसी भी टास्क को आप पूरे तन्मयता के साथ पूरे दिल दिमाग से कर पाएंगे। तो ये मुझे लगता है कि आप एक अच्छा शोध करें, आपके शोधों से ह्यूमंस को फायदा हो, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़े। मैंने आपका काफ़ी समय लिया और कई तरह के टेक्निकल फ्लॉज भी हुए, तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट, कर नहीं सकते थे। दिस इज ऑल फॉर माई डिलिबरेशन। थैंक यू सो मच।